Hello guys, myself Vipanpreet Kaur. So as you all know, we have completed our chapter whole explanation and today we will going to do our exercises and I will explain it to you. Okay, so before starting this video or this exercise, do like, share and subscribe my channel. So let's move to our exercise and I have to inform you that in this part we will do only the short type and in the next part we will do all the long types and then we will clear over all the doubts. Okay, so now move to our exercise. Now our chapter 2 is classification of plants. Yeah, and we have completed our whole explanation. So now we are going on our review questions. My first is multiple choice. Now first of that is the two main categories of plants recognized on the basis of whether they produce fruits or not are biennials and annuals, angiosperm and gymnosperm, herbs and shrubs, bryophyta and pteridophyta. So in this question they are asking about दो मेन कैटेगरीज, वो दो मेन कैटेगरीज प्लांट्स की जो कि किस पर बेस होती हैं कि वो प्लांट्स जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था. दैट वाज द एग्नियोस्पर्म एंड जाइम्नोस्पर्म. या कि वो ही दो कैटेगरीज हैं जो कि प्लांट्स को इस किस बेस पर जानती हैं कि कैटे रिकॉग्नाइज करती है कि वो फ्रूट्स पे प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं. Now second one is unicellular organisms with a proper nucleus are included in the group Protista, Monera, fungi या algae. Unicellular organism एक proper nucleus के साथ. Unicellular organism are those organisms who are the single cells. They have only a single cell. Okay. So unicellular organism with a proper unicellular organism जिसमें एक proper nucleus है, वो किस ग्रुप में आएंगे? Protista, Monera, fungi या algae. The correct answer is Protista. Now next question is amoeba belongs to amoeba किस से belong करता है? So as you know, amoeba is a unicellular means single cell organism and our topic points are options are Monera, Protista, fungi या algae. So our answer is Protista because Protista is the group in which unicellular organism included and amoeba is also a unicellular means a single celled organism. So our MCQs are completed. We have only 3 MCQs and now move to our short answer type questions. Now first is name the categories of the following. अब हमें इनकी categories बतानी है. अब first is plants which do not have roots, stems and leaves. वो plants जिनके पास stems नहीं होती हैं, roots नहीं होती हैं, leaves नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? So they are the thallophyta. उन्हें हम कहते हैं thallophyta are the those plants which do not have roots, stems and leaves. Now second is plants with no roots but have stems and leaves. वो plants जिनके पास roots नहीं होती पर उनके पास stems भी होती हैं and leaves भी होती हैं, वो होते हैं bryophyta या mosses. They are both are the same one. Third is plant with root, stems and leaves and which bear spore producing bodies are. वो plants जिनके पास roots भी होती है, stems भी होती है, leaves होती है, सब कुछ होता है पर वो जो है spore producing bodies को bear करते हैं, उनके पास एक spore producing body होती है. So इसे हम कहते हैं fern and pteridophyta. Fern are the well formed leaved plants. इनके पास well formed leaves होती हैं. Now fourth one is the amphibians of the plant kingdom. Plant kingdom के amphibians किसे कहा जाता है? Mosses और the bryophyta are the same answer. आप इसमें mosses भी लिख सकते हैं and bryophyta भी लिख सकते हैं. Okay. Now our second is give 2 characteristics and 1 example for each of the following. अब हमें 2 characteristics बतानी है और एक example देनी है इन सब की.
फर्स्ट इज एल्गे। एल्गे के बारे में एग्जाम्पल एंड उनकी टू कैटेगरीज। एल्गे की एग्जाम्पल हो गई स्पाइरोगाइरा एंड करेक्टरिस्टिक्स आर एल्गे हैव क्लोरोफिल। एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है। एल्गे कैन बी इधर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइदर एल्गे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है एंड मल्टीसेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल भी हो सकती है, सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकती हैं। एल्गे एग्जाम्पल इज स्पाइरोगाइरा एंड कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर एल्गे के पास क्लोरोफिल होता है मीन्स अ ग्रीन पिगमेंट कंटेन द एल्गे। एल्गे के पास एक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो होता है। एंड एल्गे जो है यूनिसेलुलर सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन वन सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है। नाउ सेकेंड इज फंगई। फंगई का एग्जाम्पल है मशरूम। फंगई एग्जाम्पल इज मशरूम एंड करेक्टरिस्टिक्स। फंगई लैक क्लोरोफिल। फंगई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटुअस। ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकती है और फिलामेंटुअस भी हो सकती है। नाउ थर्ड इज मोनोकोट। मोनोकोट एग्जाम्पल राइस। इसका एग्जाम्पल चावल राइस है। इनकी करेक्टरिस्टिक्स है एम्ब्रियो विद सिंगल कोटिलेडन। इनके पास जो एम्ब्रियो होता है वो इनमें सिंगल कोटिलेडन होता है। मेजर लीव वीन्स पैरेलल। ज़्यादातर इनकी जो लीव वीन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल मीन्स आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, दो लाइन सेम डिस्टेंस कवर कर दिया एंड किसी भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करते, उनके बीच का डिस्टेंस जो है सेम होता है, दीज आर कॉल्ड। नाउ डाइकॉट। डाइकॉट एग्जाम्पल रोज। डाइकॉट प्लांट्स का एग्जाम्पल है रोज। इनकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई एम्ब्रियो विथ टू कोटिलेडन्स। इनके पास एम्ब्रियो जो होते हैं उनमें दो कोटिलेडन्स होते हैं एंड इनकी मेजरली वीन्स जो होती हैं रेटिकुलेटेड होती हैं। रेटिकुलेटेड आर द टाइप आर द network of veins that are not well defined। मीन्स जो रेटिकुलेटेड जो है ये भी वीन्स का एक पैटर्न है जिसमें जो है वीन्स पैरेलल रन नहीं करती, किसी भी दिशा में कहीं भी जा रही होती हैं। दैट्स अ नेटवर्क। अनटाइडी कह सकते हैं, इट्स कोई मैनर नहीं होता इसका। सो व्हाट इज सेइंग दैट कि डाइकोट और मोनोकोट में डिफरेंस है। डाइकोट में जो है टू कोटिलेडन्स होते हैं एम्ब्रियो में एंड इन मोनोकोट देयर इज अ सिंगल कोटिलेडन। एंड मोनोकोट की लीफ वीन्स जो होती है पैरेलल होती है एंड डाइकोट की रेटिकुलेटेड होती है। नाउ फिफ्थ इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? एग्जाम्पल हैं इसके लिवर वॉट्स। लिवर वॉट्स इज द एग्जाम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्रायोफाइटा इज द मोसेसिया। सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव स्टेम्स एंड लीव्स बट नो रूट्स। इनके पास स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती है, पर इनके पास रूट्स नहीं होती हैं। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। सिक्स्थ इज प्टेरिडोफाइटा, दैट्स इज फर्न। ये फर्न है। एग्जाम्पल हो गया हॉर्स टेल्स। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? दे आर सीडलेस। इनमें सीड नहीं होती है। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये किसकी मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ सेवेंथ इज टेनोस्पर्म। एग्जाम्पल हो गया पाइन एंड करेक्टरिस्टिक्स आर दे बियर सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये जो है सीड्स होती हैं इनमें, पर इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं और फ्रूट्स नहीं होते हैं। दे आर मोस्टली वुडी ट्रीज। ये ज़्यादातर वुडी ट्रीज होते हैं, जस्ट लाइक पाइन इज अ वुडी ट्री। Cedar is also the example of gymnosperm. Now, differentiate between our third topic. First is algae and fungi में differentiate है. Okay, algae are autotrophic while fungi are heterotrophic. Autotrophic and heterotrophic are the type of nutritions. Both are the type of nutritions. Autotrophic nutrition is the type of the nutrition in which plants make their food own. ऑटोट्रॉफिक जो है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं एंड हीटोट्रॉफिक आर दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दे आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ओके, सो एल्गे जो है ऑटोट्रॉफिक होती है एंड फंगी जो होती है वो हीटोट्रॉफिक होती है। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक। ज़्यादा एल्गी जो होती हैं एक्वेटिक होती है, मीन्स पानी में रहने वाली होती है। एंड मोस्ट ऑफ द फंगी आर टेरेस्ट्रियल। और ज़्यादातर जो फंगी होती है वो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड वाली होती हैं।
ओके, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल आप थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हो। ज़्यादातर एल्गी एक्वाटिक होती है एंड ज़्यादातर फंगी जो होती है टेरेस्ट्रियल, लैंड में रहने वाली होती है। नाउ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एल्गी, क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, दैट्स वाई ये जो है ऑटोट्रॉफिक होती हैं। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर द फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तो होता है, हाँ, तो एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है बट क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। एल्गी कंटेन स्टार्च एज स्टोर्ड फूड मटेरियल। एल्गी के पास स्टार्च होता है एक फूड स्टोर मटेरियल की तरह, जो खाना स्टोर कर लेते हैं तो वो उसको एल्गी में स्टार्च कहते हैं एंड ग्रीन प्लांट्स में भी स्टार्च ही कहते हैं। ओके, आफ्टर देन फंगी कंटेन ग्लाइकोजन। फंगी के पास ग्लाइकोजन होता है एंड ऑयल, ऑयल होता है ऐसा स्टोर फूड मटेरियल। फंगी के पास ग्लाइकोजन या ऑयल होता है स्टोर फूड मटेरियल के पास की तरह, वाइल एल्गी के पास होता है स्टार्च होता है ऐसा स्टोर्ड फूड मटेरियल। ओके, सो आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएट अच्छे से समझ में आ गया। एल्गी ऑटोट्रॉफिक, फंगी हेटरोट्रॉफिक। ज़्यादातर एल्गी एक्वेटिक, ज़्यादातर फंगी टेरेस्ट्रियल। क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल एब्सेंट। एल्गी में खाना जो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, फंगी में जो खाना स्टोर होता है ग्लाइकोजन या ऑयल की फॉर्म में। सो नेक्स्ट इज monocot and dicot plants. Monocotyledons and dicotyledons. First seeds have a single cotyledon. Monocot में जो है seeds के पास single cotyledon होता है। डाइकॉट में सिंगल सीड्स के पास दो cotyledons होते हैं। लीव्स हैव पैरेलल वेनेशंस। मोनोकॉट में जो लीव्स का वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है एंड डाइकॉट में लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, और लीव्स का जो होता है वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। मोनोकॉट फाइबरस रूट सिस्टम प्रेजेंट। मोनोकॉट में फाइबरस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड डाइकॉट टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट। आई होप कि मुझे फाइबरस रूट सिस्टम एंड टैप रूट सिस्टम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग ये 6th क्लास में पढ़ चुके हो। ओके, सो टैप रूट सिस्टम जो होता है वो होता है उनमें एक प्राइमरी रूट होती है, उसमें से सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं एंड आफ्टर देन उसके छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंड फाइबरस रूट जो है एक पॉइंट रूट के ब्रांच के ए स्टेम के एक पॉइंट से वो सारे निकल रहे होते हैं। स्टेम यूजुअली होलो इन मोनोकॉट प्लांट्स में जो स्टेम होती है ज़्यादातर हॉलो होती है एंड डाइकॉट में स्टेम जो है ज़्यादातर सॉलिड होती है। सो व्हाट इज मोनोकॉट में सीड्स के पास सिंगल कॉटिलेडन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है एंड स्टेम जो है हॉलो होती है। डाइकॉट में सीड्स में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, टैपलेट सिस्टम होता है और स्टेम जो है सॉलिड होती है। नाउ ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हीटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, अभी आप अच्छे से क्लियर कर लोगे इसे। ओके, अगर आपको कोई डाउट भी होगा। ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। हीटरोट्रॉफ्स आर एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हीटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपने आप खुद खाना नहीं बना सकते, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। ऑटोट्रॉफ्स कैन स्टोर लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स जो है लाइट एनर्जी को एंड केमिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, वाइल हीटरोट्रॉफ्स कैन नॉट स्टोर एनर्जी। हीटरोट्रॉफ्स जो है एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स सर्कल प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स लीव्स में खाना बनता है, लीव्स प्रोड्यूस करती है, तो दीज आर द प्रोड्यूसर्स। हीटरोट्रॉफ्स सर्कल कंज्यूमर्स। हीटरोट्रॉफ्स को कंज्यूमर कहा जाता है क्योंकि ये जो है दूसरों से खाना कंज्यूम करते हैं, सो दीज आर द कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरिया एंड अमीबा। बैक्टीरिया are simplest of organisms by structure and also one of the smallest. बैक्टीरिया जो है सिंपल है ऑर्गेनिज्म से, एक स्ट्रक्चर से बैक्टीरिया सिंपल है ऑर्गेनिज्म से एंड ये जो है सबसे ज़्यादा छोटा भी है। अमीबा इज सिंपलेस्ट एनिमल। अमीबा भी सिंपल एनिमल है। बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल होते हैं। अमीबा इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ ओनली वन सिंगल सेल्स। इसमें भी वही कहा गया कि अमीबा भी सिंगल सेल ही होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। बैक्टीरिया कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर सच एज सॉइल, एयर एंड इवन बॉडीज ऑफ एनिमल्स। बैक्टीरिया जो है कहीं भी पाया जा सकता है,
जैसे कि सॉइल में हो गया, सॉइल मिट्टी में हो गया, एयर में हो गया, जबकि ये जो है एनिमल्स की बॉडीज़ में भी पाया जा सकता है। बैक्टीरिया एनिमल्स की बॉडीज़ में भी पाया जा सकता है। अमीबा कैन बी फाउंड इन प्लेसेस विद स्टैगनेंट वाटर सच एज पॉन्ड्स। देखो अमीबा जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, अमीबा जो है स्टैगनेंट वाटर मीन्स खड़ा हुआ पानी, जैसे कि पॉन्ड्स में होगा, अमीबा पाया जा सकता है। बैक्टीरिया जो है कहीं पर भी पाया जा सकता है, कहीं पर भी सॉइल में होगा, वाटर में होगा, एयर में होगा, जबकि ये जो है एनिमल्स की बॉडीज़ में भी पाया जा सकता है। बट एल्गे जो है स्टैगनेंट वाटर खड़े हुए पानी में पाया जाता है, जैसे कि पॉन्ड्स में पानी खड़ा रहता है, रुका हुआ पानी कई दिनों से, तो उसमें क्या पाया जाता है, अमीबा। बैक्टीरिया कैन बी सीन ओनली अंडर अ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया को हम सिर्फ और सिर्फ हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अमीबा कैन बी सीन ओनली द माइक्रोस्कोप। अमीबा को हम कैसे भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया को देखने के लिए हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए, बल्कि अमीबा को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए। फिफ्थ, मॉसेस एंड फोन्स। मॉसेस एंड फोन्स में क्या डिफरेंस है? मॉसेस ग्रो एज ग्रीन वेलवेटी लेयर्स इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये हम अपने चैप्टर में भी क्लियर कर चुके थे। मॉसेस जो है ग्रीन कलर की वेलवेटी मखमली लेयर होती है मॉइस्ट प्लेसेस में। जैसे कि मखमली आप कैसे कह सकते हो, ग्रीन ग्रीन आ जाती है, तो मम्मी पापा कहते हैं ना मॉसेस आ गए हैं, तो वो क्या होता है, आप उसमें उंगली लगा फिंगर से करते हो ना, वो हट जाती है जल्दी। तो दैट इज़ द वेलवेटी लेयर, मखमली होती है। डैम्प सॉइल में मीन्स नमी वाली सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में होती है, वो ट्रीज़ की बाग पर ग्रो कर जाती है। और डैम्प वॉल्स मीन्स गीली गीली नमी नमी मॉइस्ट वाली हुई दीवारों पर होती है। Ferns are grown in most of the gardens for the beautiful leaves. Ferns जो ज़्यादातर गार्डन्स में ग्रो होती है अपनी ब्यूटीफुल लीव्स के कारण, है ना, उनकी कितनी अच्छी लीव्स होती है। एंड वो जो है रिप्रोड्यूस भी स्पोर्स के द्वारा करती है, इनमें कोई फ्लावर्स नहीं होता है। These plants have stems and leaves but no roots. जो मॉसेस हैं इनके पास स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, पर इनके पास रूट्स नहीं होती हैं। जबकि फर्न्स जो होते हैं दे बियर वेल फॉर्म लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। इनके पास जो सब कुछ होता है, वेल फॉर्म लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, रूट्स होते हैं। सो मॉसेस क्या होते हैं, ग्रीन वेलवेटी लेयर होती है मॉइस्ट प्लेसेस में। ये डैम्प सॉइल नमी वाली मॉइस्ट सॉइल्स में ग्रो करता है, ट्रीज़ की बाग पे ग्रो करता है, और डैम्प वॉल्स में ग्रो करता है। फर्न्स जो होते हैं ये जो है ज़्यादातर मोस्ट गार्डन्स में ग्रो करते हैं अपने ब्यूटीफुल लीव्स के कारण। एंड ये प्लांट्स के पास जो होती है, मॉसेस के पास स्टेम्स होती है, लीव्स होती है, पर इनके पास रूट्स नहीं होते। जबकि फर्न्स के पास जो होती हैं लीव्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, रूट्स होती है, सब कुछ होता है। सो नाउ अवर सेकेंड लास्ट सॉरी नेक्स्ट इज सेकेंड लास्ट इज दैट्स अवर सेकेंड लास्ट डिफरेंशिएट. No, that one is last. Angiosperm and gymnosperm. Angiosperm and gymnosperm can be herbs, shrubs and trees. Angiosperm जो होते हैं herbs भी हो सकते हैं, shrubs भी हो सकते हैं, trees भी हो सकते हैं. While gymnosperms are mostly woody. Gymnosperms जो है ज़्यादातर woody trees होते हैं. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर प्रेजेंट. एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, जबकि जाइम्नोस्पर्म में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट. जाइम्नोस्पर्म में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते, ये एब्सेंट होते हैं. सो नेक्स्ट इज बियर सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट. इनमें जो है एंजियोस्पर्म में जो होती हैं सीड्स जो होती हैं वो फ्रूट में इनक्लोज होती हैं. एंड जाइम्नोस्पर्म में जो होती है नेक्ड सीड्स होती है जो कि फ्रूट में इनक्लोज नहीं होती हैं. आगे रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. एग्जांपल मैंगो ट्री, ग्रास, शुगर केन एक्सेट्रा. जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इसका एंजियोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं फ्लावर्स. एंड इनके एग्जांपल है मैंगो ट्री, ग्रास, शुगर केन एक्सेट्रा. सो जाइम्नोस्पर्म का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव आर यूनिसेक्सुअल कोन्स. रिप्रोडक्टिव जो होते हैं इनमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल मीन्स कि मेल भी हो सकती हैं वो कोन्स, फीमेल भी हो सकती है. दैट बियर सीड्स, इनके पास सीड्स होती हैं. एग्जाम्पल क्या होगा इसके, पाइन, सिदार एक्सेट्रा. सो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है जाइम्नोस्पर्म का उसमें यूनिसेक्सुअल कोन्स होती हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है. और इसमें जो है
सीड्स भी होती हैं इनमें, जैसे कि पाइन, सिदार एक्सेट्रा. सो टेक अ क्विक समरी ऑफ दिस डिफरेंस. एग्नियोस्पर्म में हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज कुछ भी आ सकता है. इनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें जो है इनकी सीड्स जो है फ्रूट्स में इनक्लोज होती हैं, बाद में चेंज होती हैं. आफ्टर दैट इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है यूनिसेक्शुअल भी हो सकता है, बाइसेक्शुअल भी हो सकता है. इनके एग्जाम्पल मैंगो ट्री या ग्रास, शुगर केन और भी. अब जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर बड़ी ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नहीं होते हैं और इनमें नेक छोटी छोटी सीड्स होती हैं जो कि फ्रूट्स में इनक्लोज नहीं होती, चेंज नहीं होती हैं. एंड आफ्टर दैट इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है यूनिसेक्सुअल कॉन्स होती है, जो जिसमें कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जो कि सीड्स को बियर करती है. इनके एग्जाम्पल हो गए पाइन, सिदार एक्सेट्रा. ओके, सो अवर whole differentiates are completed. There is our 6 differentiate and we have completed it. Now our last of the short answers are match the following. Our first is bread mold. Bread mold answer is saprophyte. Spirogyra. Spirogyra answer is has chlorophyll. Mosses answer is has rhizoids. Fern answer is leaves with spores. Gymnosperms answer is naked seeds. So इस साइड पे मैंने मार्क किए हैं एंड देन आई हैव रोट इट इन द बॉटम. सो यू कैन टेक द screenshots and do from this video also by stopping it, pausing it. Okay, so I hope you learned all the short answers clearly, and if anyone arises any type of doubt, you can ask me. Do comment in the comment box and I'll be making the doubt video soon. It's coming soon. Okay, so this is our whole short answers, so complete it in your notebooks and I hope you all learned it clearly. Okay, so thank you for watching this video. I hope you all understand it. If anyone arises any type of doubt, to comment and have a good day. Bye. Do like, share and comment.